He's a man who's one of the most credible names in Indian bureaucracy and comes with solid academic credentials and an equally strong professional experience as Secretary, Ministry Housing and Chief Secretary, Uttar Pradesh Government. Durga Shankar Mishra, the man who will be remembered for many milestone projects of national importance in the country, is our guest today. So it's an absolute privilege and honor to have you with us. What extent did people go to stop RERA? Big powers in the real estate and the developers, they did not want this kind of a legislation which is regulatory legislation. People were kind of made hostage. Customers' rights were not protected. Cities are engines of growth. हम एक शिकागो हर साल बना देते हैं. Implementation and implementation. Circle rate and market rate में जमीन आसमान का फर्क. What's the most important skill that an IAS officer should have according to you? Making things possible. One thing you would like to change about Indian bureaucracy? Integrity. Highest level of integrity. He was the first man who got RERA implemented on ground, overcoming resistance of powerful lobbies, fighting them out in the court and finally winning the case. The next couple of years was spent in strengthening RERA, building confidence amongst the real estate stakeholders, establishing of state-wise tribunals. Apart from RERA, Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Urban made significant strides under his leadership. Crores of homes were built for the urban poor under the mission of housing for all. Besides, many cities in the country within 2 years of his appointment became open defecation free, and some of them even acquired the status of ODF Plus and ODF Plus. He's also credited to implement the Smart Cities mission, in particular facilitating the development of Integrated Command and Control Center, the nerve center for managing urban services and civic services, especially during the critical time of COVID-19 pandemic. But the one project he will always be remembered for is the Central Vista redevelopment. We are talking about one of the most credible names in Indian bureaucracy. He's somebody who comes with solid academic credentials and is an electrical engineer from IIT Kanpur and an equally strong professional experience as Secretary, Ministry Housing and Chief Secretary, Uttar Pradesh Government. Durga Shankar Mishra, the man who will be remembered for many milestone projects of national importance in the country, is our guest today. So it's an absolute privilege and honor to have you with us. Thank you, Namita ji. मार्च 2016 में रेरा आता है. इट इज़ पास बाय द पार्लियामेंट. मई 2017 में उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए. आप आते हैं इनटू द पिक्चर इन जून 2017. आप आते ही इनहेरिट करते हैं एक तो एक मर्ज मिनिस्ट्री फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन to which has been just dissolved, and the newly created Ministry of Housing and Urban Affairs. दूसरी तरफ you are greeted with a series of litigation and legal cases have been put on you, on your ministry, and you have to then fight it out for 6 months. To what extent did people go to stop RERA, and what was that journey like? Namrata ji, I was Additional Secretary in Ministry of Urban Development from 2014 July to June 2017, when this new law, I'll call this as a transforming the real estate, this law came in existence. But in June 2017, I took over as Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, which was by merging the two Ministry of Urban Development and Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. I was the first secretary of this Ministry of Housing and Urban Affairs. The new law was notified in May 2000 for the operations in May 2017. And then came series of litigations in different high courts. People challenging on different grounds. Big powers in the real estate, the developers, they did not want this kind of a legislation which is regulatory legislation to bring transparency into the sector. You must have heard an Honorable Prime Minister said many times that people were kind of made hostage. I mean, you had to invest, you invested all your earnings into a house,
and you did not know that if your promise say 100 square meter house, you will get 100 meter not. You are promised that you will get say for say 30 lakhs rupees, you will get for 30 lakhs, or you will have to pay 60 lakhs rupees. What is the quality of the house? All kinds of things. There was so much of uncertainty. Yeah. I mean, the customers' rights were not protected. So at that time, the new government of NDA, which brought this legislation, and then there was a series of litigation in many high courts. The first job I had was to consolidate them at one place, either at the Honorable Supreme Court at the apex level or at one of the high courts. So we filed an application in the Honorable Supreme Court, and we requested them that we cannot fight this case on different grounds at different high courts. Let it be consolidated at one place. So with the orders of the Honorable Supreme Court, all these cases were consolidated in the Honorable High Court of Mumbai. And then we supplied all the information. In fact, I remember that every day I was being briefed in the evening. We will make any strategy. I will talk to our Additional Solicitor General who was representing our case in Mumbai High Court. And that way, I mean, we did not want to leave any gaps. Make sure the intention of the government to bring transparency, accountability, customer centricity into this sector Correct. was brought. And fortunately, on 7th of December 2017, Honorable High Court of Mumbai, I mean, this is a wonderful judgment they have delivered, and it put a stop to all kinds of queries or all kinds of doubt that this act will never see the light of the day. So I find December is extremely crucial in your professional career. I mean, like, we are recording this podcast in the month of December. 7th December 2017, the RERA judgment finally came in your favor after struggling for 6 months. From Mahua on the 29th of December, exactly one day later, which is again December 30th, 2021, you are appointed Chief Secretary at the Uttar Pradesh government. So I think December has something very critical in your life. जैसे before Christ, after Christ, ऐसा एक इतिहास में tipping point होता है, तो वैसा ही रेरा है, before रेरा, after रेरा. So in your own experience and in your own words, what is the difference you could bring into the real estate sector by bringing in RERA? नम्रता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा. ये RERA is a kind of a watershed for the real estate sector. RERA के पहले कोई भी एडवर्टाइज कर सकता था, किसी भी साइज के मकान के लिए कर सकता था. ज़मीन अभी उसके पास है या नहीं है, ज़मीन लिटिगेशन में है, कितने का बनाएगा ये उसको पता नहीं है. वो कुछ भी कर सकता था कि आपको 50 लाख में देंगे, 30 लाख में देंगे, 20 लाख में देंगे. उसके बाद वो देगा भी कि नहीं देगा, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ऐसा किसी प्रकार का कोई भी रेगुलेशन रियल इस्टेट सेक्टर में नहीं था. जो सरकार ये नया लेजिस्लेशन लाई, उसका उद्देश्य यही था कि सबसे पहले अब नए लॉ में आप तब तक कोई भी प्रॉपर्टी के लिए एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं अगर उसमें 500 स्क्वायर मीटर से बड़े के प्लॉट पे हो या 8 से ज़्यादा मकान हो. तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका लैंड का इनकम्बरेंट हो, मतलब किसी प्रकार का उस पर इनकम्बरेंसी ना हो. आपका नक्शा पास होना चाहिए. आप कंस्ट्रक्शन के लिए हर तरीके से जो भी उसकी जो नो ऑब्जेक्शन वगैरह होता है वो सारा पूरी तरह से तैयारी हो. और आप ये कहने के इस दृष्टि से है कि हम इतने साल में हम इसको कर देंगे, इतने दिन हम डिलीवर कर देंगे. और आप डिलीवर नहीं करेंगे समय से तो फिर उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी जो अथॉरिटी लगा सकती है. और पेनल्टी भी बहुत ही मतलब डिटरेंट पेनल्टीज हैं उसकी. तो ये जो है एक अकाउंटेबिलिटी, रियल इस्टेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी लाने का ये नया अध्याय चालू हुआ. दूसरा चीज़ कि आप अगर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज करते हैं तो जो कस्टमर्स हैं उनको आप इन्वॉल्व करके करें. कोई कर नहीं सकते, आसानी से नहीं कर सकते. आपको हर चीज़ उसको जो रेरा अथॉरिटी को जानकारी भी देना पड़ेगा, आपको जानकारी देना पड़ेगा. और रेरा अथॉरिटी आपके लिए आपको बहुत सारे कंप्लायंस करने के लिए उसको अधिकार मिले हुए आपसे इंश्योर कराने के लिए कि आप इस जो काम दे रहे हैं उसको कर लेंगे. तो मुझे लगता है कि ये करने से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ इस सेक्टर में, अब बैंकिंग इंडस्ट्री को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि अगर वो लोन देते हैं तो उनको लोन का पैसा वापस आ जाएगा, नहीं तो लेकर के भाग सकते थे. कस्टमर्स अगर वो मकान के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कस्टमर को मकान मिल सकता है. जो लोग यहाँ पे इस सेक्टर में काम करने वाले हैं, वो सेक्टर में काम करने वाले लोग जो है
उनको प्रोफेशनल्स आएंगे। मैंने पहले ऐसे लोग आते थे, पता चला कि वो जो है मसल मैन हो सकते हैं, लोगों को हरास कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे प्रोफेशनल जो एजुकेटेड हैं, जो कि मैनेजमेंट को समझते हैं, जो रियल एस्टेट को समझते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग को समझते हैं, ऐसे लोग आएंगे। तो पूरे सेक्टर का एक तरह से चर्निंग हो गया। बहुत क्रेडिबिलिटी ले आए आप इस सेक्टर में। यू वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इवन दो द कंसेप्चुअलाइजेशन एंड द पॉलिटिकल impetus came from the center, from the Prime Minister's office, you played a key role in executing and implementing it. But even in this project, there were a lot of problems, like you were questioned about the project cost, you were questioned about the fact that the work has been on during the pandemic. How did you address those queries and what did you tell the naysayers? देखिए, ऐसा है कि सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम सारे ऑफिसेस अलग अलग प्राइवेट बिल्डिंग्स में ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके ऊपर शुरुआत में तो मैं अंदाज़ा कर रहा था करीब 1000 करोड़ का किराया लग रहा होगा। जब मैंने सारा सारा इसका हिसाब किताब लिया तो लगभग 1500 करोड़ रुपए एनुअल भारत सरकार जो है रेंटल दे रही थी। और बड़े प्रभावशाली लोगों के मकान हैं, जिन लोगों के मकानों में ये भारत सरकार के तमाम सारे मंत्रालय या उनके ऑफिस उसको चल रहे थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच था, उन्होंने जब 2014 में इस बात को हमारे मंत्रालय को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ करें कि जिससे कि सारे के सारे मंत्रालय एक साथ आ जाए। उससे कई लाभ होंगे। सबसे पहला कि अगर सरकारी बिल्डिंग बन जाएगी तो उस बिल्डिंग से ये जो रेंट जो सरकार करीब 1500 करोड़ रुपए सालाना दे रही है, उससे उसको बचत होगी, और उसी बचत को 5-7 साल 8 साल के भीतर भीतर जो बचत है उसी पैसे से सारा सारा बन जाएगा। दूसरा, जब एक जगह होगा तो फिर अभी आज की डेट में हमारा ही मंत्रालय, जैसे मैं अर्बन डेवलपमेंट का, तो हमारा मंत्रालय निर्माण भवन में भी था, कुछ हमारा जो है दूसरे भी बिल्डिंग में था, जैसे कि उद्योग भवन में भी हमारे कुछ ऑफिसेज थे। तो अब जो एक मंत्रालय का, जब मैं माइंस मिनिस्ट्री में था तो माइंस का वहाँ भी था, उद्योग भवन में था, और सीजो कॉम्प्लेक्स में था। सब बिखरा था। इतने बिखरे जगह लोग थे, तो उनको सब एक साथ जब आ जाएंगे तो जो इतना फालतू का जो ट्रेवल करना पड़ता, दिन भर फाइलें यहाँ से वहाँ जाती हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। वो सारा खत्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। जो पब्लिक, जिनको इससे जो पब्लिक या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनको काम होता है, मंत्रालयों से काम होता है, उनको भी एक जगह आएंगे और सारा काम हो जाएगा। तो बहुत सारी एक सिनर्जी गवर्नमेंट में आ जाएगी। ये इस सोच के साथ ये सेंट्रल विस्टा काम चालू हुआ। अब ऐसा है कि मैंने ये अनुभव किया, पूरे 40 साल में पब्लिक सर्विस में, स्टेट में और सेंटर में रहा हूँ। कोई भी अच्छा काम करिए, बहुत लोग उनको पूरी समझ नहीं होती इसके लिए भी, या उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसको लेकर के वो लोग अपोज करते हैं। तो जब शुरुआत में सेंट्रल विस्टा का जो पूरा प्रपोजल बना, और जब पार्लियामेंट की पहले बार, ये तो इसका डिस्कशन तो 20 साल से चल रहा था, बहुत दिनों से इसका डिसीजन चल रहा था कि नया, लेकिन कोई किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहाँ बनाएंगे। बात हो रही थी कहीं कोई उधर मैंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, कोई द्वारका में, कहाँ बनाएंगे। जब पहले बार सारा का सारा ये हुआ कि पार्लियामेंट के बगल में जो पुराना पार्लियामेंट पुरानी हो चुकी थी, वो इसलिए बनी नहीं थी कि जो हमारे देश की जो पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट है और हमारे पार्लियामेंटेरियंस की जो संख्या बढ़ रही है उसको एकोमोडेट कर सकते, बहुत सारी दिक्कतें थी। ये मुझे भी बताने की जरूरत है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। तो जब नई पार्लियामेंट की बात हुई तो बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए। 8-9 केसेज जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एनजीटी में, सारे के सारे लोग पहुंच गए। तो मैंने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इसको सारे केसेस को कंसोलिडेट करके एक जगह लाया जाए, और व्यक्तिगत तौर पे मैंने केस के हर पहलू को, मैं घर पे बैठ करके एक चीज़ें हमने अपने साथियों के साथ बैठ के पूरा उसको तैयार कराया। वी फॉट द केस, और सारे फैक्ट्स जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, और आपको जान करके खुशी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा का सारा क्लियर कर दिया। और जब क्लियर किया तो जनवरी 2020 में उसका जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका नींव रखा गया। और आज आप देखिए पार्लियामेंट इतना जल्दी, इतना फास्ट जो काम हुआ है, इस प्रकार का काम शायद कहीं पे इस प्रकार का, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी और उस चीज़ को पूरा बन करके तैयार हो गया। और जो देश की जो ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग कहीं जाते हैं किसी भी देश में, आप वाशिंगटन डीसी में जाइए, जहाँ भी जाइए, आप पेरिस में जाइए, वहाँ के सेंट्रल विस्टा को देख के आपको प्राउड महसूस होता है। और हमारा सेंट्रल विस्टा को देख करके जो है लोग लगता था यार क्या चीज़ है इस प्रकार का, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, राष्ट्रपति जी बैठते हैं, गृह मंत्री जी बैठते हैं, रक्षा मंत्री बैठते हैं, ऐसे जो पूरा देश के जो वहाँ पे किस प्रकार की हालत थी। आज आप कर्तव्य पथ पे जाइए,
कर्तव्य पथ पे आपको चाहे वाटर बॉडी को देखिए, वहाँ की रोड को देखिए, वहाँ वॉकिंग पाथवर्स को देखिए, चाहे 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है, उसमें कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं होता, सारा सारा इतना बढ़िया हो गया। मैंने जब हाईकोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रखे जी कि इतने सारे, क्योंकि मैं भारत सरकार का अर्बन सेक्रेटरी था जी, मुझे सारी जानकारी थी कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, खुद मेट्रो के हमारे काम हो रहे थे। जब सारे फैक्ट्स हाईकोर्ट के सामने रखे कि ये लोग क्यों पिन डाउन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, तो मुझे आपको जानकर खुशी होगी कि हाईकोर्ट ने 3 लाख रुपए की पेनल्टी उनको लगाई। और जब 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे माननीय जज साहब ने कहा कि आप तो 3 लाख बहुत कम लगा, हम आपको 10 लाख लगाएंगे। हमारे लोग इतने जो लोग इसकी बारे में, मैं नाम नहीं लूँगा, इतने बड़े बड़े लोग थे जो कि भारत सरकार में सेक्रेटरी रह चुके थे, बड़े बड़े पदों पर, इसको वो लोग भी सबके जो इसके पीछे थे। ऐसे लोग जो कि इंडियन पुलिस सर्विस में, इंडियन फॉरेन सर्विस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, अगेंस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, हाँ ये सब इसके खिलाफ। तो ऐसे ऐसे लोग जा रहे थे, लिटिगेशन में जा रहे थे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं तो, लेकिन जब उनको सारी चीज़ दिखेगी कल को प्राउड महसूस करेंगे। अब जैसे आपका फसाड लाइटिंग हुआ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को, इतने लोग अखबारबाजी आप पुराने निकाल के देखिए, आज देखिए पूरे देश में फसाड लाइट हो गई है। तमाम सारे, चाहे मैंने किसी भी शहर में जाइए वहाँ पे कोई ना कोई मॉन्यूमेंट ऐसा होगा कि डायनामिक फसाड लाइट हो रखी, तो लोग उसको बाद में अप्रिशिएट करते हैं और पहले उसकी खिलाफत करते हैं। अब जो पार्लियामेंट है, जो नई पार्लियामेंट बनी है, मैं कहूँगा ये पीपल्स पार्लियामेंट है। आप कभी जाकर के देखिए, मैं तो उसकी एक एक ईंट से एक एक चीज़ को चुकी, मैं उसकी पूरी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन हर चीज़ में इन्वॉल्व रहा। इस पार्लियामेंट में आप पुराने पार्लियामेंट से देख लीजिए, वो तो बना ही नहीं था, पार्लियामेंट के लिए बना नहीं था। इस पार्लियामेंट में अगर कोई हमारा देश का नागरिक जाता होगा, उसको कितना प्राउड महसूस होता होगा। उसके क्षेत्र का, उसका जो कल्चर है, उसकी जो हेरिटेज है, वो सारी की सारी चीज़ें इस प्रकार से बनी हुई हैं कि उसको लगता हो कि यहाँ पे हमारे देश का नीति निर्धारण करता है। जिन लोगों को हम लोग चुन करके भेजते हैं, अपने तमाम सारे क्षेत्र से भेजते हैं, वो लोग यहाँ बैठते हैं और हमारे लिए ऐसा कुछ बनाते हैं जो कि हमारा हित करेगा। Why is urbanization the government's sole focus and why not counter urbanization? After all, the coming of people from tier 2, 3 towns towards Delhi, Mumbai, Chennai is putting a huge strain on the metro's infrastructure. देखिए नम्रता जी, ऐसा है कि हमारे देश में जो प्लान डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 1950s के बाद, हमने कभी अर्बन एरिया पे फोकस नहीं किया। इनफैक्ट हर कोई कि सब कुछ रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि अर्बन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले बार इसके बारे में सोच हुई जो कि JNNURM वगैरह 2005 के बाद जो है, लेकिन बहुत एडहॉक तरीके से कि कुछ कहीं सड़क बना देंगे, कोई फ्लाईओवर बना देंगे, कोई पानी का सुविधा कर देंगे। पहले बार एक सिस्टमेटिक, इंटीग्रेटेड, एक विजनरी सोच जो चालू की गई 2014 के बाद से। क्योंकि हम कहते हैं, हमने सबको ही कहता, सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ, सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। हमारे देश में 2011 की आबादी थी, जो हमारा सर्वे हुआ था वो था 37.7 करोड़, और जो प्रोजेक्शंस है बाई 2030 इट विल क्रॉस 50 करोड़, by 2040 it will cross 60 crores and by 2050 it will cross 85 crores। तो यानी हमारे देश में जिस प्रकार का अर्बनाइजेशन हो रहा है, इससे हर साल करीब 700 से 900 करोड़ स्क्वायर फीट का रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। हम एक शिकागो हर साल बना देते हैं। ये हमारे देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ग्रोथ को आगे तभी कर सकते हैं, डबल डिजिट में ला सकते हैं, 8-9%, 10% कर सकते हैं, क्योंकि सिटीज़ में लोग इकट्ठा होते हैं और उससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसका सही से यूटिलाइजेशन होता है। इसके लिए पहले बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, जो कि देश को स्वच्छ करने के लिए, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले 500 सिटीज़ का था जो 1 लाख से ऊपर वाले थे, अब सारे शहरों का लगभग 4,900 शहर है, सारे के सारे शहरों के लिए। फिर उसके बाद जो स्मार्ट सिटी मिशन जो कि हम 100 शहरों को प्रकाश स्तंभ बनाएंगे, लाइट हाउसेज बनाएंगे कि जिससे स्मार्ट डेवलपमेंट कैसे शहरों का हो सकता है, उसके बारे में। फिर हाउसिंग फॉर ऑल, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सिटीज़ का ग्रोथ हो रहा है, हमारे बड़े शहर जितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो 2 टियर की जो सिटीज़ है वो ग्रो कर रही हैं, और आने साल में वो
हमारे फिर वो बड़े शहर बन जाएंगे। जो 3 टियर की सिटीज़ है वो फर्दर ग्रो कर रही हैं। तो ये ओवरऑल पूरे देश में हमारे अर्बनाइजेशन का जो माहौल बना हुआ, और ये नॉन रिवर्सिबल है जी। सवाल ये कि क्या हम उसका ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं जो कि पब्लिक के लिए बहुत तकलीफ दे हो, शहर में आए तो जिंदगी के समस्याओं से जूझता रहे, या हम ऐसा कुछ बनाएं जो कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, जो उसके रहना आसान हो जाए। सोच बहुत अच्छी है और इट हैज़ अ हिस्ट्री व्हाई यू हैव डन व्हाट यू हैव डन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट you know the fact remains that when it comes to employment and education, it's still Delhi, Mumbai, Chennai, the metros which take the cake, and that is one reason why people are still compelled to come. I just feel very sad when I see people being forced to come from smaller cities towards Delhi for no other reason but employment or the lack of it in their cities. देखिए, ये जरूर ये माइग्रेशन होता है क्योंकि जो बड़े हमारे शहर हैं वो मैग्नेट्स हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज जो है छोटे शहरों में जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि स्मार्ट सिटी में सारे बड़े शहर ही नहीं है, छोटे छोटे शहर भी है। हाँ। और जब वहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है, जो आज की डेट में इनोवेशन स्टार्टअप के जो कल्चर, एक जो नया कल्चर स्टार्ट हो गया आज हमारे देश में इतना तेजी से हो रहा है। Pradhan Awas Yojana was a big achievement. Many homes were built in rural and urban areas. Please tell us more about this. जब ये प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल का विजन लाया था और इसको जो 2015 के जून में इसको लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो उस समय अनुमान ये था कि लगभग 1 करोड़ मकान की जरूरत पड़ेगी। और आपको बता दूं कि इसके पहले JNNURM में 10 साल में कुल 12.5 लाख के आसपास मकान सैंक्शन किए गए थे और करीब 8 लाख के आसपास मकान पूरे हुए थे, और उसमें भी 2 लाख से ज़्यादा मकान थे जो खाली थे। तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि जहाँ पे आप 8 लाख 10 साल में किए हो, 7 साल में 1 करोड़ मकान बना लेंगे, ये इम्पॉसिबल लग रहा था। मैं बड़ी खुशी के साथ आपसे आज शेयर कर सकता हूँ कि 1 करोड़ 18 लाख मकान सैंक्शन हो गए। और जब हम मकान की बात करते हैं तो जैसे पहले होता था कि मकान का मतलब कि 4 दीवारें और छत, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश, कई सारे निर्देश थे उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। पहला तो इसमें प्राइमरी जो इसकी ओनरशिप होगी विमेन की होगी। अगर विमेन एंड मेन दोनों हैं तो लेडी का पहले नाम होगा, मेन का बाद में नाम होगा। बड़े एक्सेप्शन के तौर पे मेल का तो ज़्यादातर इसकी ओनरशिप विमेन की है। दूसरा, मकान तभी कंप्लीट मानेंगे जब उसमें शौचालय भी होगा, बिजली का कनेक्शन भी होगा, और वहाँ पे जो है ये सारी सुविधाएं होंगी। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है प्रधानमंत्री आवास योजना का। सर, उसी से जब अर्बन पुअर की बात होती है तो आप एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी लेके आए थे, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी, जो कि इंटेंशन हद से ज़्यादा अच्छी थी कि जो अर्बन पुअर हैं दे नीड नॉट बाय अ होम, परचेज अ होम, दे कैन स्टे ऑन रेंट इन अ होम। बट फॉर सर्टन रीजन दिस डिड नॉट टेक ऑफ एंड देयर वर वैरायटी ऑफ इश्यूज। Can you throw some light on why it was, I think, conceived as a public-private partnership model, and the private developers did not see incentive enough in being a part of this? Though at the face of it, it seems such a fantastic policy, but why do you think this did not take? देखिए नम्रता जी, ये स्कीम आई थी कोविड के बाद। जी। जब कोविड के बाद जो तमाम सारे पलायन हुए शहरों से, लोग गांव में अपने घर को वापस चले गए, छोटे शहरों में वापस चले गए। ये वो लोग थे जो कि स्लम्स में रह रहे थे। देखो, जब शहर में कोई आता है, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, जब कोई शहर में आता है तो उसका सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे होता है? मकान पे होता है, और वो उसी को सेव करना चाहता है। वो सेव करने के लिए ऐसी जगह रहता है, या तो शहर से दूर हो, अपना जो काम करने का या पढ़ने के लिए आता है, कोई काम करने आता है, कुछ और व्यवसाय करने आता है, तो वहाँ से दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहता है, वहाँ से रोज़ साइकिल से आता जाता है या गाड़ी से आता जाता है, शहर को कंजेस्ट करता है। दूसरा, कम से कम किराया उसको चाहिए, तो स्लम या स्लम जैसा एरिया, जो अनथराइज एरिया, ऐसी जगह पर रहता है, वो रहने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जब हम लोगों ने देखा कि इतने सारे लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और क्योंकि जान है तो जहान है, उनको डर लग रहा था कि अगर वहाँ रहेंगे तो उनकी जान चली जाएगी, तो उनके लिए क्यों नहीं हम लोग ओनरशिप हाउस है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ओनरशिप हाउस पे करती है, उसके मकान खुद का मालिक हो जाता है, तो हम लोग रेंटल हाउसिंग बनाए। और ऐसा हमने दुनिया में तमाम सारे, जैसे मैंने फ्रांस में देखा है, जर्मनी में देखा है, हॉलैंड में देखा है, तमाम सारे देशों में या तो उनकी लोकल बॉडीज़ बनाती हैं, काउंटीज़ बनाती हैं, स्टेट बनाता है। तो हमारे देश में आज तक इसके बारे में सोच नहीं थी।
जब ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी जब उसमें रिव्यू कर रहे थे कोविड के बाद जो उसके सामने रखा गया, उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और इसके बाद अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की योजना आई। और आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल, इसमें दो किस्म की चीज़ें थी। पहली तो थी कि जो बड़े बड़े मकान बना दिए गए थे JNNURM में और खाली पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि शहर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर थे, न वहाँ पे पानी की सुविधा, न बिजली की सुविधा, न वहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा, कौन वहाँ जाके रहेगा। या राज्यों की, जैसे मैं अपने राज्य के बारे में बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के बारे में, कि वो मान्यवर काशीराम आवास योजना बनी हुई थी या राम मनोहर लोहिया आवास योजना बनी थी। वो सब इस प्रकार से एक प्रकार से बिल्डिंग बन गई थी। तो बिल्डिंग से तो कोई नहीं रहता जब तक ये सारी सुविधाएं ना हो। और सबसे बड़ी सुविधा लाइवलीहुड की सुविधा ना हो। शहर के दूर तो कोई जाके नहीं रहना चाहता, उसकी सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है। लेकिन अब शहर बढ़ करके वहाँ तक जा चुके। ये सब मकान 10 साल 15 साल 20 साल पहले बने हुए थे। तो पहला एक इसका स्कीम था कि ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं उनको हम लोग रेंटल में कन्वर्ट कर दें, माने प्राइवेट का वहाँ पे प्राइवेट खर्च करे और खर्च करने के बाद किराए पे रखे। वही 1500-2000 जो किराया उनको वहाँ मिलता है ऐसे अनथराइज एरिया में या स्लम एरिया मिलता है, उसी प्रकार का किराया उनसे ले और ले करके फिर उसको चलाए, रेंटल हाउसिंग के तौर पे चलाए। दूसरा, अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के पास जो ज़मीन अगर है तो हम उनको कुछ इंसेंटिव दें, जैसे कि उनको FAR दे दें, उनको ग्राउंड कवरेज बढ़ा दें, उनको जो है नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करें तो उसके लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव दे दें। ये सब चीज़ें दे करके जिससे वो बनाएं और किराए के मकान चलाएं। और मुझे लगता है कि इसको ले करके करीब 3 लाख के आसपास मकान सेंक्शन हो गए थे। और अब तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 बना है, उसके जो 4 वर्टिकल्स हैं उसमें एक वर्टिकल यही है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, और उसी फॉर्म में, ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। और ये इसके लिए एक और चीज़ बहुत बड़ा, आपने लेजिस्लेशन की आप बात करी थी, एक नया लेजिस्लेशन आया। मैं 2021 में इसको, जो मैं 2021 या 20 में मुझे ध्यान आ रहा है, 2021 में इसको सारे राज्यों को हमारे कैबिनेट के अप्रूवल के बाद सबको सर्कुलेट किया गया। वो था मॉडल टेनेंसी लॉ। आप सोचिए, हमारे देश में जो टेनेंसी लॉज थे, पूरे देश में जो टेनेंसी लॉ थे, वो लॉज थे हमारे नॉर्मली बने थे 60s में, 50s में, 70s में बने थे। उस समय प्रोटेक्ट करना था उसका जो टेनेंट है उसके राइट को प्रोटेक्ट करना था। यानी जो आपको मकान किराए पे देता है उसके राइट के बारे में किसी ने चिंता ही नहीं। एंटी लैंडलॉर्ड एंड प्रो टेनेंट। यस। और उसका नतीजा ये था कि आपको ये फिगर मैं दे रहा हूँ, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो हमारा सेंसस हुआ था, 2011 का सेंसस हुआ था, करीब 1.1 करोड़ हाउसेस खाली पड़े थे, क्योंकि लोगों की हिम्मत नहीं है कि अपने मकान को किराए पे दे दें। अगर देंगे तो फिर तो खाली नहीं करा पाएंगे। वो जो लॉ ऐसे थे, उस लॉ को बदल करके पहले बार मॉडल टेनेंसी लॉ भारत सरकार ने कैबिनेट में, माननीय प्रधानमंत्री का अप्रूवल हुआ और उसके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद वो हमारा पूरे देश भर को दिया गया। और आज तमाम सारे राज्यों में जहाँ पे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दोनों के राइट्स को बैलेंस किया गया, उसको कोई चोरी न कर ले, उसको कोई ज़बरदस्ती छीन न ले। तो आने वाले समय में अगर उनके लिए रेंटल हाउसिंग बना दिए, पहले से ही मकान बना दिया जाए जिसमें लेबर आकर के रहे और फिर बाद में वहाँ पे सर्विसेज देने वाले लोग रहे, तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है। You oversaw efforts to make urban areas in India open defecation free. And within a year or two, many cities in the country became ODF plus and ODF plus plus. Now, in a country of this size, scale and volume, how does one deliver large-scale projects and achieve success? What is your mantra for success in executing large-scale projects of this nature? देखिए, ऐसा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 के 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता बापू के 150वीं जन्म जयंती जो 2 अक्टूबर 2019 होगी, 5 साल के बाद, वही होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें। तो आप लोगों के मन में बहुत सारा शक था, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, करेंगे कैसे करेंगे। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, पब्लिक के लोग थे, सबके मन में शक था, क्योंकि हम इतने गंदे थे। लेकिन 2014 के बाद जब 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया, उन्होंने एक बात कही कि ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये जन आंदोलन है, ये पब्लिक का कार्यक्रम है। और आप उनको कभी भी पुरानी जहाँ भी उन्होंने बोला इसके बारे में, एक बार जब उसकी पहली एनिवर्सरी हो रही थी विज्ञान भवन में, और उन्होंने कहा कि चाहे 100 गांधी हो जाए या 1000 मोदी हो जाए, ये मैं उनके वर्ड को मैं एक्सेक्ट रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन लगभग उसी भाव को ला रहा हूँ,
देश हमारा साफ नहीं हो सकता है जब तक इस देश की 125 करोड़ जनता जो है इस बात को ठान न ले। और जिस दिन ठान लेगी तो दुनिया का कोई देश हमें गंदा नहीं रहने देगा। और इसको उन्होंने जो हमेशा फोकस किया कि पब्लिक को इसमें आना, यानी बिहेवियरल चेंज। और मैं बता दूं कि हमारे मंत्रालय में मुझे तो इस कार्यक्रम को लगभग 7.5 साल लीड करने का मौका मिला अपने प्रदेश, अपने पूरे देश के लिए, और फिर 2.5 साल अपने प्रदेश के लिए मुख्य सचिव के रूप में। जो सबसे बड़ा फोकस है बिहेवियरल चेंज के ऊपर, चाहे वो कूड़े को आपको गीला और सूखा कूड़ा उसमें सेग्रीगेट करना हो, उसको प्रोसेस करना हो, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कूड़ा से कंचन। तो देखते देखते हमारा देश बदल गया। नतीजा ये हुआ कि पहले तुम्हारा लक्ष्य था ODF का, ओपन डेफिकेशन फ्री लोग, और आज ODF प्लस प्लस के बाद वाटर प्लस, ताकि कोई भी वाटर बॉडी हो, चाहे वो जलाशय हो, चाहे नदी हो, नदी का छोटा फॉर्म रिवरेट होता है वो हो, उसमें कोई गंदा पानी न जाने पाए। एक ये अभियान नहीं, एक आंदोलन के रूप में चल रहा है। और आने वाले समय में समझता हूँ कि हमारा देश इतना स्वच्छ हो जाएगा जो बिल्कुल अनुमान भी नहीं होगा कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुँच गए। इसको करने के लिए जैसे कि एक मंत्र दिया, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इस पे अब कैसे लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, ये कॉन्स्टेंटली लोगों को उनको हैमर करना है। आप देखिए इसके ऊपर फिल्म बन गई है। आप देखिए कि इसको लेकर के एक स्कूलों में, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सारे स्कूलों में, आप सोचिए कि कितनी बच्चियां स्कूल इसलिए नहीं जाती थी कि उनको टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी। सारे स्कूलों में टॉयलेट की फैसिलिटी 100% पूरे देश भर में एक इसको इंश्योर कराया गया। तो हर एक का इसमें जब तक पूरा का पूरा योगदान नहीं होगा। I want to also focus your attention to the alternative housing technologies that you got into the fray by this global housing technology competition. ये बड़ा interesting मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि 6 आपने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो हैं पैन इंडिया वो इम्प्लीमेंट करे। तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो आपको लगी कि वाकई दे विल हेल्प एड एंड एबेट प्रोलिफरेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन द कंट्री? एज ए सेक्रेटरी में पहला जो हमारा प्रगति हुआ उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया। और उसमें जब प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा, जब प्रेजेंटेशन के बाद जो उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी आप अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं कि जब हम 1 करोड़ से ज़्यादा मकान बना रहे हैं तो दुनिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में ला सकें। तो उस समय तो मैंने उनको तुरंत उत्तर दिया कि बिल्कुल सर, हम एक एग्जीबिशन को हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें लोगों को बुलाएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे, लोग देखेंगे, उसको सीखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ इसके बारे में एक चैलेंज के बारे में सोचिए। जो प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया चैलेंज का सोचो, उसके बाद हमने बहुत मंथन किया। इसमें 3 कंपोनेंट थे। एक तो हमने चैलेंज के माध्यम से जो 6 हमारे जियो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हर एक में एक एक शहर को सेलेक्ट किया। तो इसमें साउथ में चेन्नई, वेस्ट में राजकोट, सेंट्रल में इंदौर, नॉर्थ में लखनऊ, ईस्टर्न में रांची और नॉर्थ ईस्ट में अगरतला। ये 6 शहर हमने चैलेंज माध्यम से सेलेक्ट किए। और हमने दुनिया की टेक्नोलॉजीज को एम्बेसीज के माध्यम से इनवाइट किया। 54 कंट्रीज से तमाम सारे नई नई इंडस्ट्री है, करीब 18 नई किस्म की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में थी नहीं थी, वो आई। लोकल पार्टनर के माध्यम से इसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता ये था कि ये टेक्नोलॉजी हमारे देश की ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कि कॉस्ट को कम करेगी, स्पीड को बढ़ाएगी, आपकी जो लोकल मटेरियल को जो आपको यूज़ करेगी, कंफर्ट को आपको बेहतर करेगी, है ना, और आपकी ये डिज़ास्टर से रिजिलियंट होगी। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आपको जान करके आश्चर्य होगा। जैसे रांची में जो मकान बन रहे हैं वो तो लेगो बच्चे खेलते हैं, लेगो टाइप का पूरा पूरा मकान बनता है, एक के ऊपर दूसरा रखते चले जाते हैं। कहीं पे टेक्नोलॉजी बन रही है, सारा का सारा वो आपका एक दीवार बन गई, सीढ़ी अलग बन गया, दीवार अलग बन गई, खिड़की अलग, सारा का सारा लग रहा है जैसे फैक्ट्री होता है। और फैक्ट्री में ऐसा होता है कि सारा का सारा एक साथ बनता है, कुछ कहीं बन रहा है कि कुछ बन रहा है कि कुछ बन रहा है, वो सब बना करके एक साथ इकट्ठा करके मकान बना देते हैं। तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है और उनकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी है, कंफर्ट भी उसमें बहुत अच्छा है। और आज वो टेक्नोलॉजी जो 6 टेक्नोलॉजी है वो हमारे पूरे देश की टेक्नोलॉजी बन गई है। आशा इंडिया में हमने 5 जगहों पे 4 IITs, चेन्नई, मुंबई, रुड़की और खड़गपुर, ये 4 IITs में, और 5वीं NBRI का एक सेंटर है जोरहाट नॉर्थ ईस्ट में। इन जगहों पे इनक्यूबेटर्स, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में हो, कैसे लोकल मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं वगैरह, या और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो हमारे कंफर्ट को बढ़ा सकता है, मटेरियल के बारे, जो हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में, किस प्रकार की चीज़ बनाएं, कैसे बनाएं कि फास्ट कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। और तीसरी चीज़ की प्रोसेस के बारे में।
तो ये सारी की सारी चीज़ पे इस पे इंक्यूबेट करते हैं, उसको जो है फिर बाद में मार्केट रेडी करते हैं, एक्सेलरेट के माध्यम से उसको मार्केट रेडी करते हैं और वो मार्केट में आते हैं। फिर तीसरी चीज़ की कि जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में आ चुकी है लेकिन पब्लिक सेक्टर में नहीं है। हमारी एनबीसीसी या हमारा सीपीडब्ल्यूडी या और जो ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे के, डिफेंस के, वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। उनको हम कैसे अडॉप्ट करें? और आपको जानकर के खुशी होगी करीब 50 से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, उनके एसओआर सीपीडब्ल्यूडी सबको कोऑर्डिनेट करता है, सारा सिविल इंजीनियरिंग जो पूरे भारत सरकार लेवल में, उसको एमुलेट राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम लोग अडॉप्ट नहीं किए थे सरकारी सिस्टम में, उसको अडॉप्ट किया। ये सारा का सारा हमारा जो टेक्नोलॉजी चैलेंज हुआ, ये जो नई टेक्नोलॉजी का एक माहौल बना, आज देश में उसको पूरा बन चुका है। Now, let's switch gears and move into our rapid fire round. There are no wrong or right answers here. It's just a space to know your instant responses to certain thought-provoking questions. Just one request, sir. No overthinking. Please say the first thing that comes to your mind. What's the one urban initiative that you are most proud of? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। मैं समझता हूँ कि शायद मदर अर्थ पे इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना चैलेंजिंग प्रोग्राम आज तक किसी देश में न हिम्मत हुई न किसी ने किया है। और अगर उसके बाद दूसरा मैं कहूँगा वो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही चुनौती वाले थे और इनको करने में इतना मज़ा आया, इतना सीखा मैंने प्रधानमंत्री जी से, उनके जो लगातार गाइडेंस से इतना सीखा। हमारे माननीय मंत्री जी वेंकैया नायडू जी थे, फिर बाद में हरदीप सिंह पुरी जी हुए, इतना उनसे सीखा हमने। बहुत आनंद आया इस काम को इम्प्लीमेंट करने में। Do you prefer heritage sites or futuristic architecture? देखिए, हमारे शहर बहुत सारे पुराने हैं, जैसे काशी है, तो विरासत का शहर है, तो हमें विरासत भी रखना है और विकास को भी ध्यान देना है। मैंने अगर हम केवल मॉडर्न सारे डेवलपमेंट करेंगे, तोड़ करके बना देंगे, तो उस विरासत को, अपने उस इतिहास को भूल जाएंगे। तो हमें विरासत भी और विकास भी। So, one word to describe your tenure at Ministry of Housing and Urban Affairs, Mahua. क्योंकि मैं एज ए एडिशनल सेक्रेटरी ये सारे मिशंस मैंने बनाने में बड़ी मदद की थी, अपने सेक्रेटरी के साथ बहुत काम किया था, लेकिन मेरा पूरा पीरियड जो लगा इम्प्लीमेंटेशन सोल्यूशन निकालें कि जिसके के माध्यम से हम चीज़ों को ज़मीन पे हकीकत में ला सकें। One word to describe your tenure as the Chief Secretary of Uttar Pradesh government. टू ब्रिंग यूपी इन फोकस। यूपी के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बृहद सोच थी। मैं समझता हूँ कि राम जन्मभूमि का जो मुझे सौभाग्य मिला, यहाँ पे पार्लियामेंट का मैंने सब कुछ किया लेकिन उसका उद्घाटन नहीं करा पाया, उसके पहले मैं चला गया। लेकिन भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना, उसका प्राण प्रतिष्ठा कराने का मुझे सौभाग्य मिला। शहर को पूरा चेंज करने का मुझे, वो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उपलब्धि भगवान ने मुझे दिया। और उसके बाद जो हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, जैसे 35 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे साइन किए गए, और बाद में जो पहला जो ग्राउंड ब्रेकिंग सर्वे, उसमें 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के ग्राउंड ब्रेक किए गए। जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि ये हो नहीं पाएगा, हमने 10.28 लाख करोड़ के जो ग्राउंड ब्रेकिंग कराया। ये बहुत चैलेंजिंग था और इस काम को कराने में मुझे बहुत आनंद आया। तो जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहाँ पे आप हैं, और जैसा कि आपके नाम में ही दर्शन है देवी देवताओं के, दुर्गा, शंकर सो आप पे प्रभु की असीम कृपा है और बनी रहे। हम तो यही आपको विश करेंगे। Who's the one leader or mentor that you have looked up to in your career? मुझे लगता है मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, लेकिन जो सीख मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से जितनी सारी, मतलब बिल्कुल मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, पूरा काम करने का तौर तरीका मेरा बदल गया। अब जैसे उदाहरण के लूँ, पहले बार हम पब्लिक को इस प्रकार से एंगेजमेंट, इतने हाई लेवल पे एंगेजमेंट। So if you could add one feature to Central Vista project in retrospect, what would it be? I'll say that उसको एक नेशनल प्राइड और पीपल फ्रेंडली ऐसी चीज़ बनाना, सेंट्रल विस्टा को बनाना कि जिससे कि आम लोग, हमारे देश के लोग आए तो हमारी जो हमारी पार्लियामेंट बनी हुई है, संसद भवन बना हुआ है, उसमें उनको अपना महसूस हो। ये जो हमारा मैंने देश के लिए और देश के लोगों के लिए जी, और देश का स्वाभिमान, कोई भी आए उसको देखे और उसको करे, ये हमारे सेंट्रल विस्टा का मेन फीचर्स है। What is that one big challenge in urban housing which we haven't tackled yet? एक स्लम फ्री इंडिया भाव आता मन में कि
कैसे हम जो एग्जिस्टिंग स्लम्स हैं उनको पूरी तरह से वाइप आउट कर दें, खत्म कर दें। ब्यूटीफुल आंसर, आई और एग्री विद दूसरा, यू सर। हम भविष्य में स्लम बनने न दें, ऐसा कुछ इकोसिस्टम बना दें कि भविष्य में स्लम बनने न पाए। और ये इसके लिए मैं दुनिया में ऐसे जहाँ भी है वहाँ पे स्लम्स आपको मिलेंगे। क्या हम लोग अपने देश को स्लम फ्री इंडिया नहीं बना सकते? जी। और इसके लिए बहुत सारे एफर्ट हुए हैं, लेकिन उन एफर्ट्स को मंथन करके एक ऐसा रूप देने की मुझे लगता हूँ कि ज़रूरत है, जैसे कि आज की डेट में बॉम्बे का जो सबसे बड़ा स्लम था वो स्लम फ्री होने जा रहा है। क्या सभी शहरों में ऐसा हो सकता है? और हो सकता है। बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है जी बहुत बड़ी सोशल अपॉर्चुनिटीज़ है जी। इसको कैसे कर सकते हैं? Smart cities or affordable housing, which segment deserves more focus today? टू गेट मोर फ्रॉम लेस इज ए स्मार्ट सिटी, यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और साथ में एक लेयर होगा टेक्नोलॉजी का, जिससे कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट आप उपयोग कर सकते हैं। तो दिस इज स्मार्टनेस कि जैसे आपने पानी की सुविधा है तो पानी जितना है उतने में सबको पानी की जरूरत को पूरा कर दें, जो एनर्जी जितने से सबकी जरूरत को पूरा कर दे। स्मार्ट सिटी में 3 बातें उसकी मुख्य है। पहली चीज क्या है? ईज ऑफ लिविंग। जी। लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। अब जैसे ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर सप्लाई जहाँ हो रहा है, किसी भी कहीं से टैप से पानी लेकर पी लीजिए, आपको उसको आरओ ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ईज ऑफ लिविंग। Ease of living. दूसरा, एम्प्लॉयबिलिटी, माने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो कि आफ्टर लोग शहर में आ क्यों रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, चाहे बिजनेस करेंगे, चाहे वो नौकरी करेंगे, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी। और तीसरी, सस्टेनेबिलिटी, कि शहर परमानेंट बना रहे। तो ये तो हमारा स्मार्ट सिटी का फोकस है। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, आदमी की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? पहले मकान, उसके बाद कुछ भी। सर अब थोड़े से क्वेश्चंस मैं एकदम हार्डकोर रियल एस्टेट पे भी पूछूंगी कि सर्कल रेट एंड मार्केट रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुड द सर्कल रेट्स बिकम क्लोजर टू द मार्केट रेट्स? देखिए, ये फ़र्क नम्रता जी हमेशा रहेगा। मार्केट रेट सेंटिमेंट के हिसाब से जाते हैं और सर्कल रेट सरकार जो आवश्यक समझती है, क्योंकि सरकार को भी ट्रांजिट करना पड़ता है, सरकार को भी खरीद फरोख्त करना पड़ता है अपनी ज़रूरतों के लिए। सरकार लोगों को फैसिलिटेट करती है खरीद फरोख्त के लिए। सर्कल रेट के आधार पर उसको रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त होता है। तो सरकार वो रखती है जो कि उपयुक्त समझती है कि हमारे मार्केट में ऐसा होना चाहिए। लेकिन मार्केट सेंटिमेंट में अगर बहुत तेज अप मार्केट है तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे मार्केट में। वो फ़र्क हमेशा रहेगा, कभी एक नहीं हो पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उनको एक आइडियल, एक कुछ बेंचमार्क क्रिएट करना है। दे कैन नॉट स्टार्ट विद वेरी हाई, इज व्हाट यू आर सेइंग। देखिए, बेंचमार्क तो हमेशा सर्कल रेट ही रहता है। जी। मार्केट रेट भी, मार्केट सेंटिमेंट भी उसी के ऊपर बिल्ड होते हैं। कभी पॉजिटिव हो सकते हैं, कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये भी मैं बता दूं, कई जगह नेगेटिव भी हो सकते हैं, कम होते हैं इंस्टेंसेस इसके, लेकिन दोनों हो सकता है। सो लेकिन जो ब्लैक मनी एक रियल एस्टेट मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इसी गैप की वजह से हो रहा है। आप मानेंगे इस बात को कि नहीं? ब्लैक मनी देखे, डिमोनेटाइजेशन के बाद तो काफ़ी उस पर नियंत्रण हुआ, लेकिन ये हमारा क्षेत्र नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। RERA in its current form is limited in its scope in that it only looks at the sale of properties and not the resale. So do you think in RERA 2.0 in its next avatar it should include the secondary market transactions apart from primary market transactions? रीसेल के लिए अभी धीरे धीरे मार्केट बन रहा है। या तो इंडिविजुअल के बीच में ये ट्रांजेक्शन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट उनका एग्रीमेंट के माध्यम से वो सेल होता है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जैसे रेंटल हाउसिंग के बारे में सरकार एक लेजिस्लेशन लाई है, और वो रेंटल हाउसिंग के बारे में जो है आपको जो टेनेंट लॉ जो है जिसमें दोनों को बैलेंस किया गया, आने वाले समय में इस पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन ये मार्केट में बिल्ड हो रहा है। Some people in the government in high ranking positions work for the interest of the nation, while some others work for their own interest, and the ratio is 50-50. Agree or disagree? अब आप जो नंबर दे रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं तो पूरा, मेरा कमिटमेंट देश के प्रति है। बट जो आपकी एक ऑब्जर्वेशन है बीइंग इन पब्लिक लाइफ, अब ऐसा कोई स्टडी नहीं है, लेकिन जरूर है कि बहुत सारे लोग सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, उनके आगे नेशन इंटरेस्ट। मैं समझता हूँ कि हमारे सिविल सर्विसेज में एक राष्ट्र के प्रति समर्पण, जी, क्योंकि पब्लिक सर्विस है, जी, और पब्लिक सर्विस देश के प्रति हमने कमिट किया है कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, जी। 100% काम करेंगे। Who calls the shots today, the bureaucrat or the politician? I'm sure a lot of people would like to know. हम तो जिस व्यवस्था में काम करते हैं, अल्टीमेटली हर एक निर्णय तो पॉलिटिशियन के स्तर पे होता है। जी, जी। ब्यूरोक्रेट तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, मन हम तो उसकी मशीनरी हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए।
निर्णय तो पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे कि मैं सेक्रेटरी था तो हर एक निर्णय हमारे मंत्री जी के स्तर पे होता था कि इसको करने के लिए मैं उसे इम्प्लीमेंट करता था, पॉलिसी को फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कराते थे। सर ये तो आपने मुझे एक एकेडमिक रिस्पांस दिया है और जो पॉलिटिकली काफ़ी करेक्ट है, बट इन रियल इम्प्लीमेंटेशन ऐसे बहुत ग्रे एरियाज होते हैं जहाँ पे यदि किसी को फ्री हैंड दिया जाता है तो वो बेटर इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ऐसा दिया जाता है कि नहीं? इज दैट इज बिल्कुल दिया था। मैंने कभी ये कंस्ट्रेंट महसूस नहीं किया। आई नेवर फेल्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ 40 साल की सर्विस में, कि मैं कभी ऐसा कंस्ट्रेंट फील नहीं किया कि मुझे फ्री हैंड नहीं मिला। मुझे हर एक मैंने जहाँ भी मैं जहाँ पे जो काम किया हूँ हर जगह मुझे पूरा का पूरा मौका मिला कि मैं अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट इंडियन ब्यूरोक्रेसी? इंटीग्रिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी। मुझे लगता है कि देश में जब तक हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी ना, और इंटीग्रिटी का मतलब है कंप्लीट कमिटमेंट। जी, मैंने फाइनेंशियली भी, प्रोग्राम वाइज भी, हर तरीके से हमको जो हमें देना है देश को, आप पब्लिक सर्विस में जो देना है हमें देना चाहिए, पूरी तरह से देना चाहिए। सो ये जो आज के बच्चे हैं, द यूथ, उनके लिए ज़्यादा सवाल है कि व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट एन IAS ऑफिसर शुड हैव अकॉर्डिंग टू यू? मेकिंग थिंग्स पॉसिबल। ओके, हम चीज़ों को कैसे इंश्योर करें कि चीज़ें हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि जो है डिसीजन नहीं लेते, निर्णय नहीं लेते, निर्णय को टालते रहते हैं, और निर्णय को टालने का कॉस्ट सरकार को या देश को या प्रदेश को या सिटी को बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप निर्णय लें और निर्णय को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निर्णय लें, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत तेज, क्योंकि हमारे देश में जो ताकत है, कमाल की ताकत है। कोविड के दौरान देश ने दिखा दिया कि कैसे जब दुनिया जूझ रही है तो हमारा देश आत्मनिर्भर होकर के निकल सकता है। एंड कहीं ना कहीं जो पीपल हु ऑपरेट इन द सेफ जोन एंड दे आर नॉट गो गेटर्स, इट्स नॉट फॉर देम। यस, मैं कहना कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है जी, आपको बहुत सारा कानून आपकी रक्षा करता है। डिसीजन टेकिंग, आप किसी चीज पे रुके मत रहिए, उसको निर्णय लीजिए या निर्णय लेने के नजदीक ले जाइए। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन पब्लिक सर्विस और पब्लिक लाइफ? सक्सेस बाय योर रिजल्ट्स। आपको जो जिम्मेदारी दी गई, आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं? उस जिम्मेदारी को आप पूरा कर पाए कि नहीं पाए, दैट्स योर सक्सेस। Finally, what next? In which avatar do we get to see Durga Shankar Mishra ji in the near future? आई डोंट नो। मेरा कमिटमेंट अपने देश के प्रति है जी। मैं अपने देश के लिए काम करता रहूंगा। जी, 40 साल मैंने काम किया, आगे भी करता रहूंगा। कैसे करूंगा मुझे मालूम नहीं, भगवान की जो इच्छा होगी। ईश्वर ने हमें गांव से ले जा करके वहां तक पहुंचाया, अब ईश्वर की क्या इच्छा है, भगवान मुझे कहाँ पे कैसी जिम्मेदारी देते मुझे जानकारी नहीं है। so your candid responses added so much energy to the conversation. I mean, rapid fire may be over, but the gems that you have shared will continue to shine and stay with us and our viewers for a long time. So, as someone who has significantly shaped the urban development landscape of the country, it's been a sheer pleasure and honor to have you. And thank you so much for sharing your vision and taking out the time to be with us. And thank you so much for being on the podcast. थैंक यू you, sir. नम्रता जी।